हेलो गुड मॉर्निंग ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 2 स्टार्ट किया था, ओके, और जिसमें हम देख रहे हैं केस स्टडीज। और केस स्टडीज में हमने फिलहाल अपाचे वेब सर्वर देखा, ओके, एंड जीएनयू लिनक्स देखा। देन उसके कुछ फीचर्स थे वो देखे। यस, देन फीचर्स ऑफ लिनक्स तक हमने देखा था। उसके बाद हमें देखना है इंस्टॉल कंपोनेंट ऑफ लिनक्स सिस्टम इंक्लूड द फॉलोइंग। तो जो लिनक्स सिस्टम पे जो कंपोनेंट्स होते हैं इंस्टॉल, तो वो कौन से जैसे बूट लोडर है, इनिट प्रोग्राम है, लाइब्रेरीज है, ओके। यस, तो बूट लोडर फॉर एग्जांपल जीएनयू, ग्रब, लिलो, सिस लिनक्स, कोर बूट एंड Gummy boot. This is a program that loads the Linux kernel into the computer's main memory by being executed by the computer when it is turned on and after the firmware initialization is performed. तो बूट लोडर का बूट लोडर मतलब क्या? तो बूटिंग करते हैं मतलब क्या करते हैं, सिस्टम को चालू करते हैं, आपकी सिस्टम जो है ऑन करते हैं, ठीक है। और जो बूट लोडर चीज़ क्या है कि जो जब हम सिस्टम चालू करेंगे, सो यू नीड अ बूट लोडर। तो ऐसे बूट लोडर से बहुत सारे टाइप्स के, जैसे ग्रब है, देन जीएनयू है, लीलो है, ठीक है। लीलो का लॉन्ग फॉर्म है लिनक्स लोडर, और ग्रब का है ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर, ओके। तो ये सारे बूट लोडर है जो हमें यूज़ होते हैं कि जब हम सिस्टम चालू करते हैं तो जो पहला रन होता है प्रोग्राम, तो दिस इज बूट लोडर, ओके। तो ये किस लिए, बेसिकली हमको अगर हम सिस्टम चालू करते हैं तो उसके लिए हमें इसकी बूट लोडर की जो है ज़रूरत होती है। Second one is init programs such as traditional sysvinit, and in the newer system OpenRC and Upstart. This is the first process launched by the Linux kernel and it is the root of the processes tree. तो ये जो init program है सब processes का root program है. In other terms, all processes to the limit. It starts processes such as system services and login prompts वेरेवर ग्राफिकल और टर्मिनल कमांड। तो जो लॉगिन वगैरह है उसके लिए बेसिकली हमें इनिट प्रोग्राम की ज़रूरत होती है। देन सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज विच कंटेन्स द कोड दैट कैन बी यूज बाय प्रोसेसेस on Linux system using ELF format, executable files, dynamic linker that manage the dynamic libraries is also add on Linux। तो लिनक्स लाइब्रेरी में इतना सारा कोड रहेगा जो आपको यूज होने वाला है कि जितने भी प्रोसेसेस रनिंग है, जितने भी टास्क रनिंग है, ठीक है, उसके लिए। The GNU library, there are numerous other libraries जैसे C standard and widget toolkit। तो जो C standard library है, it is a library needed to run the standard C program on the computer, with GNU C library being the most commonly used, and widget toolkit are the libraries to build the graphical user interface। graphical user interface आपको पता है, yes। Numerous widget toolkits are available including GTK Plus, Clutter developed by Genome, Qt developed by the Qt project, and LED by DGA. And Enlightenment Foundation library is developed primarily by the Enlightenment team. Also known as a shell, either a command line interface जिस पे आप command fire करते हैं, a graphical user interface or controls attached to be associated desktop system. Default mode is usually a graphical user. CLI is available through terminal emulator windows on की एक जो है कंसोल विंडो, मतलब पूरी ब्लैक विंडो आती है जहाँ पे आप कमांड फायर करते हैं, ओके। यस, देन नेटबुक्स। Linux distributions have also become popular in the netbook market with many devices such as the Asus EPC and Asus Aspire One shipping with customized Linux distribution installed. In 2009, Google announced its Chrome OS as a minimal Linux-based operating system. Using the Chrome browser, the main user interface, Chrome OS does not run any on the non-web application except for the bundle of file manager, media player. The netbook are shipped with the operating system term
A Chromebook started appearing on the market in June 2011. Then Android है. Android is a mobile operating system तो गूगल ने डेवलप किया है एंड्रॉयड का। और एंड्रॉयड क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप बोलते हैं एंड्रॉयड फोन, तो ये भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, एंड इट इज बेस्ड ऑन लिनक्स कर्नल डिजाइन प्राइमरीली फॉर टच स्क्रीन मोबाइल डिवाइस सच एज स्मार्टफोन और टैबलेट्स। अभी आप मार्केट में देखेंगे तो आपके वो जो बटन वाले मोबाइल थे पहले, तो अभी वो यूज ही नहीं होते हैं। ठीक है, सब लोग जो है टच स्क्रीन वाले मोबाइल यूज करते हैं। Android user interface are mainly based on direct manipulation, touch gesture that manipulate on-screen object. Loosely correspond the real-world actions such as swiping, tapping, pinching, manipulate on-screen object along the virtual keyboard and text input. तो जो टचिंग जेस्चर होता है, जैसे आप स्वाइप करते हैं या फिर लेफ्ट में जाते हैं, राइट में जाते हैं, टच करते हैं। ओके, देन अलोंग विथ वर्चुअल के कीबोर्ड एंड टेक्स्ट इनपुट देते हैं, तो सब ये सारी चीजें मतलब जो आप टच स्क्रीन के मोबाइल पे यूज करते हैं। गूगल हैज फर्दर डेवलप एंड्रॉइड देन एंड्रॉइड wear फॉर wrist, each with a specialized notebooks, gaming console, digital camera and electronic. यस, देन हम अगर इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो यहाँ पे ना कुछ नेम दिए हैं कौन से एंड्रॉइड के। ठीक है, यस, तो ये देखो बड़ा सा टेबल यहाँ पे है। मार्श मेलो है, जेली बिन, आइसक्रीम सैंडविच, जिंजर ब्रेड एंड फ्राई। ठीक है, रिलीज डेट क्या है, देन एपीआई लेवल, डिवाइस टू रन द वर्जन। ठीक है, ये सब दिया है। तो ये से बहुत सारे जो वर्जन है उसके, और उसका जो नेम है अलग अलग, और जो उनकी रिलीज डेट है, कब कौन से डेट को वो रिलीज हुई। ठीक है, यस, मॉजिला फायरफॉक्स। ठीक है, जो फोर्थ वाली केस स्टडी है, मॉजिला फायरफॉक्स, इट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय द मॉजिला Foundation and its subsidiary, the Mozilla Corporation. Firefox is available for Windows OS Linux operating system. Its mobile version available for Android. Firefox OS, where all the versions use Gecko layout engine to render the web pages, which implement current and anticipated web standard, but an version to release in 2015. Firefox was created in 2002 under the Phoenix by the Mozilla community members who wanted a standalone browser rather than a Mozilla application suite. तो ये जो Mozilla Firefox है, आपको पता है कि ये वेब ब्राउजर है। ठीक है, तो जिसमें आप वेब पेज एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो ये जो फायरफॉक्स है, मतलब आप लिनक्स में भी पास कर सकते हैं, विंडोज में भी कर सकते हैं। ओके, देन उसका जो वर्जन है वो रिलीज कब हुआ, तो इन 2015 में। ठीक है, देन फायरफॉक्स वाज क्रिएटेड इन 2002 अंडर द फिनिक्स बाय द मोजिला कम्युनिटी मेंबर। यस, देन उसकी अगर हिस्ट्री देखेंगे तो Firefox project began an experiment, the branch of Mozilla project by the Dave Hat, Joe Hewitt, and Blake Rose. They believe commercial requirements on the Netscape sponsorship and developer-driven feature creep compromise the utility of the Mozilla browser. To combat what they saw as the Mozilla suite software boot, they created a standalone browser with which they intend to replace the Mozilla suite. On April 3, 2003, the Mozilla organization announced that they plan to change their focus from Mozilla suite to the Firefox and Thunderbird. The community-driven SeaMonkey was formed and eventually replaced by the Mozilla Application Suite in 2005.
तो इसके जो फीचर्स है देखो, इट इंक्लूडेड ब्राउजिंग, स्पेल चेकिंग, इंक्रीमेंटल बुक मार्किंग, स्मार्ट बुक मार्क, डाउनलोड मैनेजर, प्राइवेट ब्राउजिंग लोकेशन, ये सारे सब उसके फीचर्स है जो वो प्रोवाइड करता है। ओके, देन एडिशनल an environmental for web developer, then DOM in such as Fire and Hello was an DC. Then add-on created by the third party and API or allow them to directly access much but सारे है उसके फीचर्स। हेलो, हेलो, किसी को कुछ पूछना है क्या? आवाज नहीं आ रही है मुझे। यस, तो मोजिला फायरफॉक्स के है कुछ फीचर्स है, ठीक है, जो हमने अभी देखे। देन उसके कुछ स्टैंडर्ड्स है, जैसे HTML4, XHTML, SVG, CSS, ECMS स्क्रिप्ट, DOM, तो ये सारे उसके जो है स्टैंडर्ड है। जो सिक्योरिटी वाला पार्ट है, Firefox uses a security model and a limit script for accessing data from other websites based on the same origin policy. It also provides support for the smart cards to web application for authentication purpose. It uses SSL TSL। तो मैं बताता हूँ कि SSL जो है सिक्योर शेल, तो ये जो है बेसिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है टू प्रोटेक्ट द कम्युनिकेशन विद वेब सर्वर यूजिंग स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी व्हेन यूजिंग HTTPS प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जब भी आप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर मतलब कुछ भी आप एक्सेस कर रहे हैं इंफॉर्मेशन या फिर कुछ अगर लॉगिन का पार्ट आता है तो वहां पे जो है ऑथेंटिकेशन होता है, ठीक है, और जो आपका अकाउंट होगा तो उसको जो है पूरा सिक्योरिटी दे देता है मोजिला फायरफॉक्स। ओके, the Mozilla Foundation offers a bug bounty to researchers who discover the serve security holes in Firefox, special guidelines for handling security vulnerabilities, discourage early disclosure of vulnerabilities so as not to give potential attackers an advantage to creating exploits। तो ये जो vulnerabilities है मतलब attackers जो थर्ड पार्टी रहते हैं जो आपका डेटा चुराते हैं या फिर आपके सिस्टम को हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी कौन रहते हैं? हैकर्स। तो इससे जो है आपको प्रोटेक्शन मिलने वाला है व्हेन यू आर यूजिंग मोजिला फायरफॉक्स। ओके, यस, तो अब हम आज इतना ही देखते हैं, ठीक है, हम कौन से केस स्टडीज देखे हमने आज अभी, मोजिला फायरफॉक्स, ओके, एंड के हमने अलग अलग वर्जन देखे एंड लिनक्स का थोड़ा सा पार्ट देखा। ओके, बाकी का जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।